पेशेंट्स कभी भी आ सकते हैं, 10 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 5 बजे भी। तो वो जब भी केस आएगा तो आपको उठ के जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि नाइट ड्यूटी में ज़्यादा केस आ जाते हैं तो अच्छे से आप सो भी नहीं पाते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि केस आया ही नहीं। तो वो डे टू डे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। तो ये तो ऐसे एक दिन तो हेक्टिक रहता ही है। Hello everyone, welcome to our channel Two Broke Doctors. I'm Dr. Shivani and today we have Dr. Rajat. Hi Dr. Rajat, how are you? आई एम फाइन। Can you give us your short introduction? I Yeah. am Dr. Rajat Parekh. I am from Jaipur and I am currently doing MD Psychiatry in Osmania Medical College, and I am currently a first year postgraduate. Okay. And I did my UG from JJM Medical College, Davankar. So you're from Jaipur. So why did you choose this branch, psychiatry? Like, was it your dream branch or it was because of your rank? Psychiatry was not my dream branch. Okay. My dream branch was some other branch, but it was definitely one of my options among all the choices. And at Okay. my rank, I think this was the best possible college that I was getting at the best possible branch without sacrificing anything. So was it your first attempt or drop? Did you take any drop? I took one drop after internship. As like everyone, I didn't study in internship, and after my internship, I took my one drop, and So in then I which got year this are you college after currently? one drop. Actually, I am going to complete my first year and waiting for the juniors to come right now. So I am a first year postgraduate. Rajat, when you decided to take psychiatry, did you do research before taking psychiatry? Take psychiatry. Actually, I did ask a few doctors because previously I was considering some other branch to go at my rank. But then people told me that regarding this branch, there's a lot of scope and it's a branch which is going to boom soon and it is an evolving branch right now. So in future, it will be a very good branch which has a lot of scope in it. Then I talked to few people who are pursuing psychiatry right now. And then I saw some videos of people who have updated regarding psychiatry and how have their experiences been. So then I decided that I can do psychiatry and I can go with psychiatry. So I felt psychiatry as one of my choices. ठीक है, अगर जैसे साइकाइट्री के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से रिसर्च किए थे? मतलब अगर इफ समबडी इज गोइंग टू परस्यू राइट नाउ तो उसे टॉप 5 कॉलेजेस कौन से लुक आउट करने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक कि लेट्स जैसे रैंक अच्छी आई है? डेफिनेटली एक तो सीआईपी रांची होगा और एक मैं जीएचएमसी चंडीगढ़ में बोलूंगा। जीएचएमसी चंडीगढ़ के बाद मैं बोलूंगा कि आप इभास है, दिल्ली का इभास है, वो भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इन 3 कॉलेजेस के बाद दिल्ली का आप मैमसी भी है, दिल्ली का मैमसी भी अच्छा है। और उसके बाद सबसे ऊपर आता है, बट नीट पीजी के थ्रू यू कांट गेट निमांस एंड ऑल। सबसे टॉप पे निमांस ही रहता है, उसके बाद सीआईपी रांची, इभास, मैमसी एंड एम्स दिल्ली भी इन्हीं के आसपास रहते हैं। तो ये 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि काफी टॉप पे रहते हैं साइकियाट्री के मामले में। अब वो डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है और आप किस जगह जाने में इंटरेस्टेड है, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। So currently you're pursuing residency. So how is PG life? Ki what one should expect from psychiatry residency? साइकियाट्री इज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ब्रांच क्योंकि इसमें आपको दोनों जगह टाइम मिलता है। आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अगर किसी का कोई अदर देन परस्यूइंग दिस एमडी, सब किसी का और कोई चीजें हैं, इंटरेस्ट है जो वो परस्यू करना चाहते हैं, तो वो उस चीज को भी टाइम दे सकते हैं इजीली, आसानी से, क्योंकि जो हमारी टाइमिंग्स है वो काफी फ्लेक्सिबल रहती हैं, इतनी नाइट ड्यूटीज नहीं रहती हैं यहाँ पे। तो यू कैन गिव टाइम टू योरसेल्फ ऑल्सो एंड गिव टाइम टू योर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो दोनों चीजों का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस रहता है, तो ऐसे कुछ तकलीफ नहीं होती है आपको। Let's just say it's not a very hectic branch कि आप जैसे फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक जा रहा है, और वो वाली ब्रांच नहीं है। नहीं, वैसी ब्रांच नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ऐसी ब्रांच है कि बहुत हेक्टिक हो, आप बहुत टैक्सिंग लगे, आपको बहुत परेशान हो। तो मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं। मेरे को 1 साल हो गया है अभी परस्यू करते हुए। Can you give us a little work profile about this कि क्या काम होता है रेजिडेंसी में? अगर मैं साइकाइट्री के परसेप्शन से बात करूं कि क्या काम करते हो, क्या आपकी नाइट शिफ्ट में क्या काम होता है, दिन भर में, मतलब क्या एक एग्जैक्टली वर्क प्रोफाइल है साइकाइट्रिस्ट की? So basically, I work in a tertiary care hospital for psychiatry, which is purely dedicated to psychiatry. तो वो वहाँ पे ऐसा रहता है कि हमारे 6 यूनिट्स हैं, तो वी आर divided among 6 units, and every week we have 2 OPD. One is main OPD, one is review OPD. So on the days of main OPD, we have OPD from 9 to till the time we finish patients, which will be usually between 1 to 2. और main OPD वाले दिन ही हमारी नाइट ड्यूटी भी होती है। So after completing main OPD, we get a break, and after the break, then emergency OPD is there at 4 o'clock. And वो पेशेंट्स देखने के बाद इवनिंग राउंड्स होते हैं। इवनिंग राउंड्स खत्म करने के बाद फिर से कुछ पेशेंट्स जो कि कंटिन्यूअसली, जैसे कि कैजुअलिटी में होता है, कोई भी कैजुअलिटी में कि अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप उनको देख रहे हो, एंड ईदर यू आर डिस्पोजिंग देम और एडमिटिंग देम। कभी भी आ सकते हैं, 10 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 5 बजे भी। तो वो जब भी केस आएगा तो आपको उठ के जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा।
तो वो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि नाइट ड्यूटी में ज्यादा केस आ जाते हैं तो अच्छे से आप सो भी नहीं पाते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि केस आया ही नहीं। तो वो डे टू डे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। तो ये तो ऐसे एक दिन तो हेक्टिक रहता ही है। अदर डेज आपके वार्ड डेज होते हैं, वार्ड डेज में आपने जो पेशेंट एडमिट करे हैं आप उनको देखते हो, और बेसिकली एज आपको इस ब्रांच में हिस्ट्री टेकिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है कि आप कितनी हिस्ट्री ले रहे हो, कैसे हिस्ट्री ले रहे हो, कितनी डेप्थ में हिस्ट्री ले रहे हो। उसके बाद एक रिव्यू ओपी आता है हफ्ते में एक बार। तो रिव्यू ओपी वाले दिन हमारी नाइट ड्यूटी नहीं होती है, बस 9 to 2 जैसे कि रोज ओपीडी होती थी वैसी ओपीडी होती है, जिसमें हम वो पेशेंट्स देखते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। हफ्ते में एक नाइट ड्यूटी आती है, 2 ओपी आते हैं, and because we have 6 units, so every 6th Sunday is a night duty for us. You're doing psychiatry from Osmania, which is well-known institute. तो एक उस्मानिया के बारे में मतलब हाउ इज इट एज अ कॉलेज, ठीक है उस्मानिया, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ साइड में बात करूं तो लोगों को इतना नहीं है पता। तो उस्मानिया एज अ कॉलेज ओवरऑल कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? मुझे तो उस्मानिया के बारे में बताऊं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक सेपरेट डेडिकेटेड हॉस्पिटल है साइकियाट्री के लिए, विच इज अराउंडली 500 बेडेड हॉस्पिटल फॉर साइकियाट्री। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पेशेंट लोड है दैट इज ट्रिमेंडस, क्योंकि तेलंगाना का सबसे बड़ा साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, तो सारे तेलंगाना के जो भी पेशेंट्स हैं जो रेफर होते हैं वो यहीं पे आते हैं। नेबरिंग आंध्रा के केसेस भी यहीं पे आते हैं, नेबरिंग जो कर्नाटका के बॉर्डर हैं, महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं, वो भी सब यहीं पे आते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में शुरू से ही आपको पेशेंट्स इंडिविजुअली देखने दिए जाते हैं। कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे दे गिव यू अ टाइम ऑफ 3 to 4 months जस्ट टू ऑब्जर्व एंड देन स्टार्ट सीइंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 10-15 दिन बोलते हैं कि सीनियर के साथ बैठ के देखो केस, उसके बाद यू कैन सी बाय केसेस ऑन योर ओन, प्रेजेंट इट टू द प्रोफेसर्स, एंड बाय दिस आई थिंक वी लर्न मोर व्हेन वी ट्राई टू ग्रास्प थिंग बाय आवर ओन एंड टेक। ये है। प्लस जो यहाँ के वर्किंग आवर्स है वो काफी फ्लेक्सिबल हैं। 9 to 4 मस्ट रहता है एवरी डे, यू हैव टू बी देयर एट 9 to 4, and except on the main OP day after 4 o'clock we can go to our home and nobody will call and annoy you because उस दिन का जो भी ड्यूटी पीजी रहेगा वो उस दिन का मामला हैंडल करता है पूरा। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। मेरे मामले में तो टॉक्सिसिटी आई थिंक मुझे तो बिल्कुल जीरो ही लगी। मुझे तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई रैगिंग हुई हमारी, ना किसी ने हमको सीनियर जूनियर वाली बॉसिंग करी कोई भी हमारे साथ। वर्क भी इक्वली डिवाइड होता है, जितना काम हम करते हैं उतना ही हेल्प हमारे थर्ड ईयर्स और सेकंड ईयर्स भी हमको करते हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है या मेरे पे वर्क डाला जा रहा है, ऐसा मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। नॉट अ टॉक्सिक डिपार्टमेंट, लेट्स जस्ट से उस्मानिया के बारे में। ओके नहीं, रिगार्डिंग साइकियाट्री आई कैन अश्योर कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं, वो भी काफी गाइडिंग ही। अगर तुम कुछ कैसा भी डाउट कुछ भी पूछोगे तो दे विल नेवर रिफ्रेन फ्रॉम हेल्पिंग यू और सेइंग कि ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, ये भी नहीं पता है तेरे को। तो ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, तो विच हेल्प्स यू इन दिस एनवायरनमेंट। सिंस यू आर फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एकदम से नॉर्थ में साउथ में चल जाओ। प्लस साइकाइट्री इज अ ब्रांच जहां आपको कम्युनिकेट बहुत करना पड़ता है। तो डू यू फील कि यार ये एक अलग से बर्डन है कि आपको साउथ में जाके थोड़ी प्रॉब्लम होगी? दिस वन शुड कंसिडर अबाउट दिस थिंग बिफोर मूविंग टू साउथ। डेफिनेटली वन शुड कंसिडर अबाउट दिस, क्योंकि आप एक तो इतनी दूर आ रहे हो, अगर इतनी दूर से आ रहे हो एंड यू विल बी ओवरवेल्म्ड बाय द लैंग्वेज। क्योंकि अब ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे और ब्रांच ही पूरा कम्युनिकेशन के बारे में है। तो आप शुरू के दिनों में तो आप थोड़े परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। बट एक प्रो ये है हैदराबाद का कि हैदराबाद में जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, यहाँ के लोगों को काफी हिंदी आती होती है। तो ऐसा रहता है कि हमारा जो केस डिस्ट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल का वो अराउंड 60 to 70% तेलुगु स्पीकिंग रहता है, और अराउंड 30% केसेस जो होते हैं, 30 to 30% अराउंड केसेस जो होते हैं वो हिंदी स्पीकिंग रहते हैं। तो डिस्पाइट दिस ऑल्सो डेफिनेटली आपको आके तेलुगु सीखनी पड़ेगी, और तेलुगु सीखे बिना काम नहीं चलेगा। आप बहुत परेशान होंगे खुद ही कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट और आपके प्रोफेसर भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर को भी पेशेंट से उसकी लोकल लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, विच इज तेलुगु। सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और अगर आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे कि कैसे उसकी साइकोपैथोलॉजी को टारगेट कर रहा है प्रोफेसर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। तो तेलुगु का तो आपको पहले से सोच के आना पड़ेगा कि हाँ कि 3-4 महीने तेलुगु मैं नहीं सीख पाऊंगा, मेरे से तेलुगु सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज। अगर जैसे हम रेजिडेंसी की बात कर ही रहे हैं तो कितने को-पीजीज हैं आपके? और सेकेंडली कि आप जैसे हॉस्टल्स अवेलेबल आपको मिले हैं नहीं मिले हैं, क्योंकि अब मोस्ट क्वेश्चन यही होता है कि वहां पे रहने रेजिडेंशियल क्या है, स्टाइपेंड टाइम पे आता है नहीं आता, पीजीज कितने हैं? तो मेरे बैच में इंक्लूडिंग माई सेल्फ देर आर 22 पीजीज इन साइकियाट्री। रिगार्डिंग हॉस्टल तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, सो नोबडी इज गेटिंग हॉस्टल राइट नाउ।
No, nobody is getting hostel, and if you want, you can try for the Usmania Medical College as a hostel, which is initially not available for people who are having clinical branches. Later, after 1 or 2 months, it might be available, but that hostel is like 10 kilometers away from our हॉस्पिटल सो डेली का बहुत हैसल हो जाएगा इतना ट्रैवल करना. Rajat, when we are talking about psychiatry, there is stigma attached to this branch, right? कि अभी भी शायद पेशेंट इतने विलिंगली नहीं साइकाइट्री को पे जाते कि यार हमें दिखाना है. प्लस शायद घर वालों को भी लगता है कि एक बार आप बताओ ब्रांच की हम साइकाइट्री ले रहे हैं, तो थोड़ा कि अरे इससे अच्छी ब्रांच अगर आप जितना मेडिसिन गाइनी इन सबको मिलता है, साइकाइट्री को लेके थोड़ा वो रहता है. तो डिड यू फील द सेम और फेस द सेम फ्रॉम योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स? एक्चुअली मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने ही मोटिवेट करा था थोड़ा साइकाट्री लेने के लिए. दे वांटेड मी टू टेक साइकाट्री एंड स्टिग्मा है, डेफिनेटली है स्टिग्मा. स्पेशली आई थिंक जो स्टिग्मा है वो जजिंग फ्रॉम माय हॉस्पिटल व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स वी आर गेटिंग, आई थिंक स्टिग्मा जो है वो जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनमें ज्यादा है कंपेयर टू द पीपल ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू लेट द वर्ल्ड नो व्हाट दे आर फीलिंग. तो डेफिनेटली स्टिग्मा है. एंड आई थिंक कुछ लेवल पे व्हेन यू आर चूजिंग ब्रांच लाइक साइकियाट्री, पीपल विल डेफिनेटली ट्राई टू ड्रैग यू बैक. दे विल से कि इस ब्रांच में कोई स्कोप नहीं है, आगे कुछ नहीं होगा. कुछ लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि तू खुद भी पागल हो जाएगा, खुद भी पागल हो जाओगे. तो अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट द थिंग इज वी नीड टू, आप जैसे खुद हो आप अगर आप अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि पीपल कम विद अ लॉट ऑफ सफरिंग्स. तो और कई बार ऐसा होता है कि डिस्पाइट गिविंग योर बेस्ट यू माइट नॉट गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स. ऐसा कई बार होता है कि आप जो भी प्रोटोकॉल है आप वो सब कर रहे हो, बट फिर भी पेशेंट अपना फुल जो रिजल्ट आना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं आएगा. तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार एक्सपेक्ट करके चलो कि हाँ भाई बंदा 100% ट्रीट होके जाएगा, 100% सही होके जाएगा. इस उम्मीद के साथ आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन चीज में हेल्प कर सकते हैं. तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है इन सब चीजों को लेके. और थोड़ा सा आई थिंक अदर ब्रांचेस आर फिजिकली टैक्सिंग, दिस ब्रांच आई थिंक इज मोर मेंटली टैक्सिंग, मोर अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ. क्योंकि आपको तो इतना बात करना पड़ता है पेशेंट से, इतना पेशेंट से बातें निकलवाना पड़ता है, तो आप खुद भी मेंटली टायर्ड हो जाते हो एट द एंड ऑफ द डे. Rajat, you talked about scope and opportunities. I would like you to tell us कि मतलब जब आप ब्रांच परस्यू कर रहे होते हो तो विद इन 1 और 2 ईयर आप डिसाइड करते हो कि रेजिडेंसी के बाद क्या करना है. तो इसके आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि पीजी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो इसके बाद? एक्चुअली पीजी के बाद या तो आप एज एमडी डायरेक्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी खोल सकते हो, if you are so confident of yourself that yeah I can manage the patients on my own. एक other option एक और क्या रहता है कि you can go for a fellowship, like going for a fellowship in child psychiatry, forensic psychiatry हो गया, geriatric psychiatry हो गई, and there are options for DM also now, like DM in de-addiction, DM in child psychiatry, DM in forensic psychiatry. या एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि you can work as an SR in a government hospital, and then after gaining some confidence in the patients of that particular region, you can open your own clinic and keep working as a SR or get as a job of a professor in a government medical college. Actually इस फील्ड में if you are looking for corporate jobs, इतना corporate jobs नहीं रहता है साइकियाट्री की फील्ड में. more of a freelancing टाइप रहता है कई जगहों पे कि आप उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो वहां भी देख के आ रहे हो, उससे आप एफिलेटेड हो तो उस हॉस्पिटल में भी देख के आ रहे हो. तो ऐसा रहता है. तो इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई 3 साल बाद एक कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे, ऐसा रहेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. few might get but not everyone can get. अपॉर्चुनिटीज आर लेस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करें. यस डेफिनेटली लेस है अपॉर्चुनिटीज. और अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें आफ्टर रेजिडेंसी, कि अगर एक एमडी साइकियाट्रिस्ट को क्या मिलता है स्टार्टिंग सैलरी? अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं. जस्ट लाइक एवरी अदर ब्रांच, कि अगर आप जैसे दिल्ली में कहीं पे एसआरशिप कर रहे हैं आफ्टर फिनिशिंग योर एमडी और एसआरशिप कर रहे हैं, तो जो एसआरशिप दिल्ली में और प्लेसेस पे मिलता है वही मिलेगा, विच विल बी अराउंड 1 to 1.2 lakhs. अगर आप राजस्थान में चले जाते हो तो विच विल बी अराउंड 1 lakh. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम, लाइक इन तेलंगाना इट इज 92,000. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट की आपको कितना, आप कौन से स्टेट में जा रहे हो.
Since this branch is all about talking and you said कि आप दिन भर डील करते हो patient who are going through mental trauma, or let's just say कि depression और lot of things, you know, stress, anxiety, आप बहुत ही इस तरह के दिन भर यही आप patient देखते हो. Do you think कि ये इन सब चीजों का कभी ना कभी आपको मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है कि यार आप दिन भर एक डिप्रेशन वाले पेशेंट से बात कर रहे हो या स्ट्रेस वाले पेशेंट से बात कर रहे हो, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू जब एंड ऑफ द डे आप घर आते हो कि यार, तो क्या ये बहुत मेंटली अफेक्ट करता है या ऐसा कि फर्क नहीं पड़ता? मैं यही कहूंगा कि इट इज जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांच. सपोज कि कोई एक सर्जन है जो 30 आवर्स की शिफ्ट करके आया है, 32 आवर्स की शिफ्ट करके आया है. व्हेन ही कम्स बैक टू द होम, ही वोंट फील लाइक लेट्स गो हैव अ चिट चैट, लेट्स गो आउटसाइड डू समथिंग. सिमिलरली हमारा भी वैसा ही है कि अगर हम बहुत काम करके आए हैं तो हम भी प्रेफर करेंगे कि टू बी विद योरसेल्फ, टू टेक अ रेस्ट, हैव फूड एंड रेस्ट. तो बिल्कुल दूसरे ब्रांचेस की तरह ही है, जैसा कि आदमी दूसरे ब्रांचेस में फेस करता है जो थकान है, जो मेंटली टैक्सिंग है, जैसे दूसरे ब्रांचेस में फेस करता है, आप वैसे ही इस ब्रांच में फेस करते हो. एंड आई थिंक कंपैरेटिवली कम फेस करते हो. ये मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप पर्सनालिटी उस पेशेंट या पर्टिकुलर केस से कितना अटैच हो रहे हो, वो आपको कितना अफेक्ट कर रहा है. बट हाँ, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि आप कई बार ऐसे आते हो तो यू डू फील लो समटाइम्स, यू डू फील लाइक टू बी विद योरसेल्फ ओनली. तो ऐसे दिन तो आते हैं, बट ये सब चीजें और ब्रांचेस में भी रहती हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकाट्री का ही कौन है, ये दूसरी ब्रांचेस में भी सिमिलर चीज ही रहती है. तो हम इसे सिर्फ इस ब्रांच का ही नुकसान नहीं कर सकते, ये तो सब ब्रांचेस में ही रहता है. मतलब दे जस्ट से कि अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो अपने इमोशंस को लेके तो आपको ये ब्रांच कंसिडर करने से पहले सोचना चाहिए. इज इट अ ट्रू थिंग, और या फिर कि ये जस्ट कि लोग ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली. यूजुअली जो सब कहते हैं कि साइकेट्री आपको तभी चूज कर देती है जब आपकी साइकेट्री फर्स्ट प्रायोरिटी हो. इफ यू आर फुल्ली डेडिकेटेड एंड इंटरेस्टेड इन साइकेट्री, देन ओनली यू शुड चूज साइकेट्री. बट मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इससे. मैंने क्योंकि मेरी साइकेट्री फर्स्ट ब्रांच नहीं थी, ना ही मुझे पता था कि कितनी इमोशनली या कितनी मेंटली टैक्सिंग हो सकती है. अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मुझे अपनी रेसिडेंसी करनी है, मुझे परस्यू करना है ब्रांच को, और आप अपना पूरा दोगे, तो आई डोंट थिंक आपको इतना फर्क पड़ना चाहिए. डेफिनेटली थोड़ा जो इमोशनली लोग अटैच हो जाते हैं ज्यादा, वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है. क्योंकि आप अगर ज्यादा इमोशनली वो ड्रिवन हो तो यू कैन कनेक्ट मोर टू द पेशेंट एंड यू कैन गेन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट. तो ये दोनों तरीके से ही वर्क करता है. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ आप ही दुखी नाराज होकर बैठ जाओगे, बट that might help you connect with the patient more also and work on that aspect also. So I think उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई थिंक नहीं पड़ेगा उतना फर्क, मेरे हिसाब से नहीं पड़ता उतना फर्क कि आप इमोशनली ड्रिवन हो या आप बहुत जल्दी अफेक्ट होते हो चीजों से. क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि सभी रेसिडेंसी में ऐसा रहता है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, बस इतना सा फर्क है. टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस ब्रांच अकॉर्डिंग टू यू, यार सबसे ये हाँ, सबसे बड़ा प्रो तो ये रहेगा कि आप एक जो टाइम है वो अपने लिए भी बचा सकते हो टाइम रेगुलर बेसिस पे. और एक प्रो ये रहेगा कि देर इज सुपर स्पेशलिटी करने की इतनी मस्ट नीड नहीं है इस ब्रांच में. जैसे कि आप जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इन सब ब्रांचेस की तरफ जाते हो तो एमसीएच इज अ मस्ट और डीएम इज अ मस्ट दीस डेज. तो वो भी इतना मस्ट नहीं है. आप और फेलोशिप्स इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, जो कि 6 महीने या 1 साल की फेलोशिप्स होती हैं ज्यादातर. तो आप यूजुअली एमडी के बाद यू आर सेट टू ओपन योर ओन प्रैक्टिस और टू वर्क वेर एवर यू वांट. और एक बात यह है कि इतना वर्कलोड नहीं रहता है कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस के. फर्स्ट ईयर वोंट बी दैट हैक्टिक एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस. तो आप ये दो प्रो हैं. एक और मैं ये कहूंगा कि यू नीड टू बी वेरी पेशेंट इन दिस ब्रांच. आप अगर थोड़े कम पेशेंट हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए कि यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, पेशेंट तो मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहा है, मैं इसको इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ तब भी ये कुछ नहीं बोल रहा है. तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा. कई बार 1 दिन लगता है, कई बार 2 दिन लगता है, कई बार हफ्ता भी लग जाता है पेशेंट को आपसे अच्छे से खुलने में. तो यू नीड टू बी पेशेंट इन दिस ब्रांच. और एक कौन, अगर आप मुझे बोलो कि कौन क्या हो सकता है इस ब्रांच का, कि जो जॉब्स अवेलेबल हैं, पीपल वांट टू परस्यू जॉब्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, वो इतनी अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम पे. तो ये दो कौन हो सकते हैं. सिंस यू आर डूइंग एमडी, डू यू थिंक कि एमडी और डीएनबी में अभी भी डिफरेंस है? और एक्चुअली डीएनबी अगर व्हेन कोई इट चूज करना चाहता है तो उसके इंस्टीट्यूट, इफ यू नो एनी, जो बेस्ट हो अभी. एक्चुअली डीएनबी अगर आप करना चाहते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि आप जिस हॉस्पिटल या जिस सिटी में हॉस्पिटल ले रहे हो
वो टीयर 1 सिटी हो, क्योंकि टीयर 1 सिटीज में पीपल हैव मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग साइकेट्रिक इलनेस एंड मेंटल इलनेस कंपेयर टू टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। तो अगर आप डीएनबी सोच रहे हो तो आप टीयर 1 सिटी में लें। व्हेन आई वाज फिलिंग चॉइसेस, तो मैंने एक दो कॉलेज ही देखे थे डीएनबी के जो अच्छे हैं, जैसे कि देयर इज वन हॉस्पिटल इन हैदराबाद कॉल्ड आशा हॉस्पिटल, जो कि रिनाउंड हॉस्पिटल है फॉर डीएनबी साइकेट्री। आई थिंक वन इन मुंबई इज देयर कॉल्ड एज केजी सोमैया इज देयर, व्हिच इज अ गुड हॉस्पिटल। एक I don't remember clearly, but in Punjab also some Manas hospital is there for DNB. So these three are like good institutes, but DNB में ऐसा रहता है कि जो एक्सपोजर है, 1-to-1 एक्सपोजर है आपका पेशेंट से, वो रिलेटिवली लेस है एज कम्पेयर टू एमडी साइकेट्री। टॉक्ड अबाउट एमडी एंड डीएनबी, तो एमडी इन पेरिफेरी और डीएनबी इन फर्स्ट ईयर सिटी। आई थिंक दोनों के ही अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। जैसे कि टीयर 1 सिटी में जो होता है वो अवेयरनेस ज्यादा है रिगार्डिंग साइकेट्री। टीयर 1 सिटीज में पीपल इजीली अप्रोच साइकेट्रिस्ट रादर कंपेयर टू टीयर 3 सिटीज, क्योंकि अभी भी वो टैबू और स्टिग्मा है कि लोग मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। वो पहले झाड़ फूक कराते हैं, ये सब कराते हैं, देन दे थिंक या लेट्स गो टू अ साइकेट्रिस्ट। तो टीयर 1 सिटी में एक्सपोजर जो है पेशेंट्स का वो रिलेटिवली ज्यादा रहता है टीयर 3 सिटी से। बट इसका एक ये भी है कि डीएनबी जब आप परस्यू कर रहे होते हो तो आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर है पेशेंट से, जो एक्टिव साइकोपैथोलॉजी के साथ पेशेंट्स आते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इन ओपीडी, वो थोड़ा कम रहता है। क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी हॉस्पिटल जो आदमी आ रहा है उस हॉस्पिटल में पैसे देके दिखाने, अप्रोक्सीमेटली अराउंड द मनी फ्रॉम 400 to 800 रुपीज, वो चाहेगा कि वो एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट को दिखाए रादर देन अ फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं एक फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट को दिखाऊं। तो आप जो पहली बार पेशेंट को देखोगे वो तब देखोगे जब वो आपके वार्ड में एडमिट हो रहा है। Whereas जो पेरिफेरी के भी जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, I know a few of my friends who are doing psychiatry in periphery hospital, and they are very happy. They are having a medium exposure of patient, academics भी अच्छा है, सीखने को भी मिल रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसा है। और तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जस्ट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस और इंक्रीज योर एक्सपोजर टू द पेशेंट, आप एमडी करके 1-2 साल एसआरशिप कर सकते हो अपने स्टेट के जो भी टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन यू कैन लर्न एंड कंटिन्यू एज अ साइकेट्रिस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप शुरू से ही एक टीयर 1 सिटी में रहना चाहते हैं या टीयर 3 सिटी में रहना चाहते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। तो ये पर्सनली बहुत ही वो है चीज की क्या लोग करना चाहते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको एमडी मिल रही होती है बट वो टीयर 3 सिटी में मिल रही होती है, तो दे प्रेफर गोइंग टू अ टीयर 1 सिटी। बिकॉज ऐसा भी होता है कि लोगों का लाइफस्टाइल होता है, लोगों को कैसे रहना है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही पर्सनल वाली चीज है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, बट ये आप पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हो कहीं भी जाने से पहले। Brother, you talked about colleges and a lot of things. अगर जैसे इफ आई वांट टू परस्यू साइकेट्री, तो क्या क्या किसी इंसान को चीजें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग द कॉलेज फॉर साइकेट्री? कि हम देखते हैं ना कि सिटी या फिर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, तो क्राइटेरियाज क्या है, फ्यू पॉइंटर्स कि हाँ यार ये चीजें उस कॉलेज में होना चाहिए विच मेक्स दैट कॉलेज अ गुड कॉलेज ऑफ साइकेट्री। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि एक तो अच्छा पेशेंट लोड होना चाहिए, क्योंकि साइकेट्री में पेशेंट लोड होना जरूरी है, क्योंकि यू लर्न फ्रॉम पेशेंट्स द मोस्ट जस्ट लाइक एवरी अदर ब्रांच। तो पेशेंट लोड अच्छा रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है, मुझे ये लगती है कि आपका जो एक्सपोजर है पेशेंट से वो फ्रॉम डे 1 ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप खुद को एक्सपोज करो पेशेंट से, ये होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि फैसिलिटीज अगर लाइक जैसे कि ईसीटी है, आरटीएमएस है, अगर वो भी अवेलेबल हो तो आपको वो भी कंसिडर करनी चाहिए। ये 2 चीजें तो हैं ही। प्लस ऐसा भी प्लस ये है कि उसमें सुपर स्पेशल जैसे फर्दर जो साइड ब्रांचेस जैसे साइकेट्री, जैसे चाइल्ड साइकेट्री हो गई, फॉरेंसिक साइकेट्री हो गई, तो वो तरह का पेशेंट लोड भी आपके हॉस्पिटल में अगर आ रहा है तो वो एक एडेड बेनिफिट है, क्योंकि आपको इनिशियल डेज में ही उस चीज का एक्सपोजर हो जाएगा, जो कि लोगों को कई बार 3 साल बाद होता है जब वो फेलोशिप करते हैं या कहीं और काम करते हैं। तो आई थिंक आपको इन 3 पॉइंट्स को तो कंसिडर करना ही चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि अकेडमिक्स कैसी हैं, हॉस्पिटल की अकेडमिक्स कैसी हैं, जो कि हम और अदर ब्रांचेस में भी देखते हैं कि अकेडमिक्स हो गई, अकेडमिक्स कैसी है, टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, और टीचर्स कितने फ्रेंडली हैं, कितना ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं आपको पढ़ाने में वगैरह। तो वो सब तो और जगह भी रहता है, बट ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई कि पेशेंट लोड देखो, ये एक चीज और रहती है थेरेपी देते हैं कि नहीं देते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि आजकल साइकोथेरेपी एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज हो गई है कि पीपल डोंट वांट मेडिसिन, पीपल वांट साइकोथेरेपी। तो आप अगर साइकोथेरेपी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ा एडिशनल फैक्टर है, क्योंकि
बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं साइकेट्री के जिनमें साइकोथेरेपी इतना प्रेवलेंट नहीं रहता, तो बहुत ही कम साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं जिनमें साइकोथेरेपी भी पढ़ाई जाती है, आपको अच्छे से आप एक्सपीरियंस करते हो साइकोथेरेपी, तो वो एक और चीज आप देख सकते हो। तो साइकोथेरेपी हो सकती है, पेशेंट लोड हो सकता है, और एक और चीज हो सकती है कि फैसिलिटीज लाइक ईसीटी एंड आरटीएमएस आर अवेलेबल एट दैट सेंटर और पर्टिकुलर हॉस्पिटल और नॉट। Okay. Since we are ending this interview, तो lastly few question about कि उस्मानिया का स्टाइपेंड क्या है, just general question, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, and उस्मानिया का academics कैसा है, particularly if I talk about Uस्मानिया। एक्चुअली उस्मानिया का स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर में आई थिंक 58,200 रुपीज रहता है, एंड एवरी ईयर इट इंक्रीजेस बाय 3,000 रुपीज। Okay. और तो अल्टीमेटली 58, 61 और 64, और अगर आप एसआर शिफ्ट तेलंगाना से करते हो तो दैट इज 92,000 एट प्रेजेंट। और जो उनका बॉन्ड है वो स्ट्रिक्ट है या फिर कि स्ट्रिक्ट है, बॉन्ड स्ट्रिक्ट है। बॉन्ड स्ट्रिक्ट एक है? साल का बॉन्ड है, एक साल का बॉन्ड है जो आई थिंक 20 लाख का बॉन्ड रहता है, का बॉन्ड है जो कि स्ट्रिक्ट है, जो कि नेसेसरी है करना यहीं पे। और बाकी बात रही मेरे पर्टिकुलर हॉस्पिटल के एकेडमिक्स की, तो ऐसा हफ्ते में आई थिंक वीकली 4 क्लासेस होती हैं हम लोगों की हमारे हॉस्पिटल में। उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट्स ही वी आर गिवन टॉपिक्स बाय द फैकल्टीज, एंड हम वो प्रेजेंट करते हैं, टॉपिक्स देते हैं। एंड उसके बाद आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कीनली उस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना कीनली आप खुद आगे होकर डाउट्स पूछ रहे हैं। तो वो क्लास टू क्लास वेरी करता है कि सम प्रोफेसर्स आर ईगरली इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू, तो वो खुद आगे से आके आपको पढ़ाएंगे। कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि आप खुद डाउट पूछें तो वो पढ़ाएं, और कुछ होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है डे टू डे कि कौन कितना खुद से भी पार्टिसिपेशन कर रहा है, और वहां से भी तो मैं मॉडरेट बोलूंगा हमारे एकेडमिक्स को। बट अगर हाँ, मैंने एक चीज देखी कि अगर आप ईगरली जाके खुद से डाउट पूछेंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, आप आराम से जाके पूछ सकते हो। तो छुट्टियां बेसिकली 20+5 अकेडमिक लीव्स हैं, एंड आई थिंक आप ले सकते हो, छुट्टी मिल जाती है मेरे हॉस्पिटल में। अगर आप कभी भी छुट्टी मांगोगे 2-3 दिन की, तो ऐसे कभी ये आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप क्यों 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो, यार फर्स्ट ईयर वाई आर टेकिंग हॉलिडे। तो ऐसे कभी मना नहीं करा जाता है छुट्टियों के लिए, until unless you go with a valid reason they will never say no to you for taking leave। तो काफी चिल है छुट्टी के मामले में, मामला मिल जाती है आसानी से। You can avail all the leaves in a year also if you want to। जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, बट इन जनरल मैं बात करूं, आप जब नॉर्थ से साउथ में जाते हो, पीपल लिसन दिस कि आपको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, बी इट विद योर कलीग्स, टीचर्स, और ये दिस इज ट्रू कि हाँ, जब आप नॉर्थ से साउथ में जाते हो यू फील डिस्क्रिमिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू और पर्टिकुलरली उस्मानिया, सिंस यू लिव देयर। तो ये क्या इन जनरल है कि एक नोशन है कि नॉर्थ वाले जब साउथ में जाते हैं तो उन्हें बहुत डिफिकल्टीज फेस होती है? मैं तो 6 साल पहले भी कर्नाटका में रहा हूँ, और अभी भी मैं 1 साल हैदराबाद में हो गया है। मुझे नहीं लगता इतना डिस्क्रिमिनेशन रहता है कोई, स्पेशली मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएट में तो मुझको वैसा ही एकदम वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मेरे साथ, वेदर दे आर फ्रॉम तेलंगाना, केरला और सम अदर वट एवर स्टेट दे आर, नॉर्थ साइड फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा। तो हमें तो कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला है, बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसा और लोगों को भी मिल रहा है। तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं, या जो मेरे साथ पहले भी जो लोग रह चुके हैं, हम लोगों ने तो कभी इतना डिस्क्रिमिनेशन आज तक फेस नहीं करा है। while my UG also and while I'm pursuing my post graduation also, हमने तो कभी इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करा है कि हम नॉर्थ से हैं और साउथ में आ गए हैं, ऐसा तो। The end, rate your department and college out of 10. Like Osmania, out of 10. Honestly, like people who are going to pursue residency or thinking of pursuing there, out of 10, कि कितना डिपार्टमेंट और उसको देते हो? मैं तो 10 में से 9 नंबर दूंगा हमारे कॉलेज को, क्योंकि 10 और 10 तो कहीं पे भी नहीं होता, इसीलिए। ओके, डिपार्टमेंट एंड कॉलेज को भी डिपार्टमेंट भी मैं पूरे 9 नंबर ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है यहाँ पे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ और अच्छे से हूँ यहाँ पे। ओके, thank you for being with us today, and thank you everybody for watching our channel, and please subscribe, like and comment if you like our content. Thank you.